ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று ஸ்ராவண சுக்ல நவமி குமாரி நவமியாக அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. நாம் சில பதிவுகளாக ஸ்ராவண மகாத்மியம் பார்த்து வருகிறோம். அதில் ஜீவந்திகா விரதம், தூர்வா கணபதி விரதம், நாகபஞ்சமி, சீதலா சப்தமி விரதம் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸ்ராவண மகாத்மியமானது சாக்ஷாத் பரமேஸ்வரன் சனத்குமார யோகீந்திரருக்கு சொல்வதாக அமைந்துள்ளது. இன்றைய ஸ்ராவண சுக்ல நவமியும் மற்றும் ஸ்ராவண கிருஷ்ணபக்ஷ நவமியும் குமாரி நவமியாக அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணபக்ஷ நவமி இது கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு மறுநாள் வருகிறது. ஏன் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு மறுநாள் குமாரி நவமியாக கொண்டாடப்படுகிறது என்றால், அன்னை துர்கை விஷ்ணுமாயா கிருஷ்ணருடன் பிறந்தவள் அல்லவா, அவளது சகோதரியாச்சே. நான் அஷ்டமியில் பிறக்கிறேன், நீ நவமியில் பிற என்று சொல்ல ஒரு நிமிடம் தாமதமாக பிறந்தவள் பத்மநாப சகோதரி என்ற ஒரு திருநாமம் உண்டு அவளுக்கு. அதனால் இந்த 2 தினங்களும் குமாரி நவமியாக அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. இதை துர்கா நவமி என்றும் சொல்வர். இந்த தினங்களில் தேவி துர்கையை, சண்டிகையை குமாரி ரூபத்தில் வழிபடுகின்றனர். பூஜை வழக்கம் உள்ளோரே இதை செய்வர். இந்த தினத்தில் அரளி பூவால் தேவியை அர்ச்சித்து குமாரியாக பாவிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் சுவாசினிகளுக்கும் உணவு கொடுத்த பின் பூஜை செய்வோர் உணவு எடுத்துக் கொள்வது வழக்கம். இந்த பூஜையானது மாலையில் அல்லது இரவில் நடக்கும். வழக்கம் இல்லாதோரும் இந்த தினத்தில் அன்னையை மனதால் தியானித்து அவளுக்குரிய துதியை சொல்லலாம். அல்லது வீட்டிலோ அல்லது அருகில் உள்ள ஆலயம் சென்று துர்கை அன்னைக்கு விளக்கேற்றி பூ போட்டு அவளுக்குரிய துதிகளால் ஆராதிக்க பலன் நிச்சயம் உண்டு. விரதம் இருப்போர் இந்த தினத்தில் பகலில் விரதம் இருந்து இரவில் பாலும் தேனும் கலந்து எடுத்துக்கொள்வர். வில்வம் எடுத்துக்கொண்டு பூஜையை நிறைவு செய்வது வழக்கம்னு சொல்லப்படுறது. இதை கேட்பதாலும் இந்த குமாரி நவமியில் செய்யும் வழிபாட்டால் அனைத்து பாவங்களும் நீங்கும், சர்வ சம்பத்துகளும் கிடைக்கும், புத்திர பௌத்திர பேறு பெற்று இகப்பர சௌக்கியம் பெறுவார். அதாவது இங்கும் சௌக்கியமாக வாழ்ந்து வாழையடி வாழையாக வாழ்ந்து நல்ல தர்ம புத்தியுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கடைசியில் சத்கத்தியும் கிடைக்கும், அதாவது மோட்சமும் கிடைக்குமாம். இதையெல்லாம் மகாதேவர் சனத்குமார யோகீந்திரருக்கு சொல்கிறார். பூஜை வழக்கம் உள்ளவர் இல்லாதவர் என அனைவருமே இந்த தினத்தில் தேவி துர்கையை தியானித்து சொல்ல வேண்டிய முக்கிய ஸ்லோகங்கள் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ துர்கா சப்த ஸ்லோகி. அத சப்த ஸ்லோகி துர்கா சிவ உவாச்ச தேவி த்வம் பக்த சுலபே சர்வ காரிய விதாயினி கலௌ ஹி காரிய சித்யர்த்தம் உபாயம் ப்ரூஹி யத்னதஹ. தேவி உவாச்ச ஸ்ருணு தேவ பிரவக்ஷ்யாமி கலௌ சர்வேஷ்ட சாதனம் மயா தவைவ ஸ்நேகேனாப்யம்பா ஸ்துதிः பிரகாஷ்யதே. ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ துர்கா சப்த ஸ்லோகி ஸ்தோத்ர மகாமந்திரஸ்ய நாராயண ரிஷிஹி அனுஷ்டுபாதீனி சந்தாம்சி ஸ்ரீ மகாகாளி மகாலக்ஷ்மி மகாசரஸ்வத்யோ தேவதாः. ஸ்ரீ துர்கா பிரீத்யர்த்தம் சப்த ஸ்லோகி துர்கா பாட்டே விநியோகः. ஓம் ஞானினாமபி சேதாம்சி தேவி பகவதி ஹி சா பலாதாக்ருஷ்ய மோகாய மகாமாயா பிரயச்சதி. दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि. दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते. शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते. सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते. रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्. त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति. सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी. एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् इति श्री दुर्गा सप्तश्लोकी सम्पूर्णा. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री नवदुर्गा स्तोत्रम्. वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं ददानाकरपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता
सुरा सम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च ददाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डाशुभदास्तु मे सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी एकवेणी जपा कर्णपूरनग्नाकरा स्थिता लम्बोष्टिकर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी वामपादोल्लसल्लोकलता कण्टकभूषणा वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी इति श्रीनवदुर्गास्तोत्रं सम्पूर्णम्। दुर्गा द्वात्रिंशत् नामावली। दुर्गा दुर्गार्तिं शमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापका दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः शत्रुभिः पीड्यमानो वा दुर्गबन्धगतोऽपि वा द्वात्रिंशन्नाम पाठेन मुच्यते नात्र संशयः इति श्रीदुर्गा द्वात्रिंशन्नामावली सम्पूर्णं। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री दुर्गादेवी कवचम्। श्रीगणेशाय नमः। ईश्वर उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं पठित्वा पाठयित्वा च नरो मुच्येत सङ्कटात् अज्ञात्वा कवचं देवि दुर्गा मन्त्रं च यो जपेत् सनाप्नोति फलं तस्य परं च नरकं व्रजेत् इदं गुह्यतमं देवि कवचं तव कथ्यते गोपनीयं प्रयत्नेन सावधानवधारय उमादेवी शिरः पातु ललाटे शूलधारिणी चक्षुषी केचरी पातु कर्णौ चत्वरवासिनी सुगन्धानासिके पातु वदनं सर्वधारिणी जिह्वां च चण्डिका देवी ग्रीवां सौभद्रिका तथा अशोकवासिनी चेतो द्वौ बाहू वज्रधारिणी कण्ठं पातु महावाणी जगन्माता स्तनद्वयम् हृदयं ललिता देवी उदरं सिंहवाहिनी कटिं भगवती देवी द्वावूरु विन्ध्यवासिनी महाबला च जङ्गे द्वे पादौ भूतलवासिनी एवं स्थितासि देवी त्वं त्रैलोक्ये रक्षणात्मिका रक्ष मां सर्वगात्रेषु दुर्गे देवी नमोऽस्तुते इत्येतत् कवचं देवी महाविद्याफलप्रद यः पठेत् प्रातरुत्थाय सहि तीर्थफलं लभेत् योऽन्यसेत् कवचं देहे तस्य विघ्नं न क्वचित् भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयं तस्य न विद्यते इति श्रीकुब्जिकातन्त्रे श्रीदुर्गाकवचं सम्पूर्णम्।